Hello students, welcome back in online teaching class standard 11 NCERT syllabus biology and your chapter number 7 structural organizations in animals. I explain you the morphology of and anatomy of earthworm. Now today let's we take a new topic, frog. Okay, why we take the frog? Because frog has some specialized characteristics. Because it's included in the phylum amphibians. Okay, and amphibian is the most important character. It's that amphibians can survive on the both land and water. So they can take respiration in water also, and they can take respiration in the land also. Okay, so frog we are taking here its example, and it is included in the higher animals group Chordata, and its phylum is amphibia, and its scientific name is Rana tigrina. Okay students, and it has the some other important characteristics, so we do study under the practically and under the theoretically. In the old time it dissect as a practical view, and we learn its anatomy from the dissections, but nowadays the dissection is stayed, so we do its study under the only the theory, morphologically and anatomically both. Okay student, and frog has some other individual characters. These are because it is a cold-blooded animal, so it is called the poikilothermal. Poikilothermal means which animals can't have the their constant body temperature. Its body temperature is not constant, and they can't survive in the outer atmosphere when it is too much hot and when it is too much cold. So these animals are cold-blooded animals, and its scientific term is poikilothermals. Okay, and poikilothermals has in summer season when frog underground in the earth, then this term is called the estivation, and when in the winter there is temperature so much decrease, very low temperature, and frog can't survive like this outermost atmosphere, then it go underground in as a winter sleep, and it is called the hibernation. Okay, so according to its cold-blooded and poikilothermal animal, it has the two terms, the estivations and hibernations. Okay, another character is the frog, because it has the color, skin color is green, so it hide to himself in the leaves of and plants and the grasses, so it hide to himself from the enemy and protect from the enemy, and its character is called the camouflage. Okay students, and it is protective coloration is called the mimicry, because when rainy seasons come, then frogs are seen the outermost atmosphere, and it's produce a special types of sound, it is called the mimicry. Okay, and speak in summer and winter, frog can't sing, because I said you its specialized character, the estivations and hibernation. The frogs are mostly seen in the rainy seasons. Okay students, now we start its morphology. आप सबने फ्रॉग को तो देखा ही है, ठीक है, लेकिन आज हम साइंस के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी कैसे करेंगे. तो देखिए यहाँ पर फ्रॉग आपने बहुत टाइम देखा है, लेकिन यहाँ पर इसकी साइंटिफिकली जो स्टडी करेंगे आप, इसके अंदर देखिए कि फ्रॉग जो होता है वो वर्टिब्रेट्स के अंदर इंक्लूड होता है और एम्फीबियन ग्रुप के अंदर आता है, और इसके अंदर सभी जो सिस्टम्स होते हैं वह भी वेल डेवलप्ड सिस्टम होते हैं. और मॉर्फोलॉजिकली देखिए इसके अंदर हेड है, ट्रंक है, इसकी हिंड लिम्स है और फोर लिम्स है. यह एक ओनली इसके अंदर जो नेक होती है वह एब्सेंट होती है, नेक एब्सेंट है, और यहाँ पर देखिए इसकी ईयर जो है वह कंपाउंड ईयर है, और इसके अंदर जो होते हैं आउटर एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं वह एब्सेंट होते हैं, और एक्सटर्नल ईयर की जगह पर इसके अंदर टिम्पेनम जो होता है वह होल पाया जाता है, जिससे यह साउंड जो सिग्नल्स होते हैं उसे रिसीव कर सकता है. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए फ्रॉग की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी आप साइंटिफिक रूप से किस तरह से करेंगे, और जो इसकी हिंड लिम और फोर लिम होती है वह स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग और बुरोइंग का फंक्शन करती है, और इसकी मस्कुलर लिम्स जो होती है वहाँ पर 4 डिजिट्स होती है, ये देखिए इस तरह की, और वेब्ड फिट होते हैं जो इजीली इसको स्विमिंग करने के अंदर हेल्प करते हैं. और फ्रॉग के अंदर एक और स्पेशलिटी होती है कि इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल जो बोथ होते हैं
वह सेपरेटली हम एक्सटर्नल स्टडी करके उनकी देख सकते हैं, उसके अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि मेल फ्रॉग जो होता है उसके अंदर वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी रेनी सीजन्स में जो मिमिक्री साउंड हमें आती है फ्रॉग की, तो वह वोकल सेक्स होते हैं मेल की वजह से आती है, क्योंकि मेल के अंदर वोकल सेक्स होते हैं जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन फीमेल में यह नहीं होता है। इसके सिवाय जो होता है मेल के अंदर जो होता है एक कंपलसरी पेड होता है उसके यहाँ पर लेग्स के यहाँ पर, जो एक्सटर्नली हमें दिख सकता है, लेकिन फीमेल फ्रॉग के अंदर वो एब्सेंट होता है। तो इस तरह से मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करने पे हमें मेल और फीमेल फ्रॉग के अंदर भी डिस्टिंग्विश दिख सकता है। अब आगे हम इसके लेते हैं एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी के अंदर मैंने आपको बताया फ्रॉग जो है वह एम्फीबियन फाइलम के अंदर आता है और वर्टिब्री है, इसीलिए इसके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं वेल डेवलप होते हैं। जब हम फ्रॉग को डाइसेक्ट करते हैं, इसको वर्टिकल साइड से ओपन करते हैं, तो हम इसके अंदर इसके सारे वेल डेवलप सिस्टम देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इन सभी को हम इसके अंडर में लेते हैं एनाटॉमी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एनाटॉमी के अंदर मैं आपको सबसे पहले एनाटॉमी बताती हूँ इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। ओके, जब फ्रॉग को डाइसेक्ट करते हैं तो देखिए इसका वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता है। या माउथ से जो फूड होता है उसको इंजेक्ट करता है, इसमें इजेशंस भी होता है, डाइजेशंस भी होता है और इजेक्शंस भी होता है, एसिमिलेशंस भी होता है। इस 4 प्रोसेस के अंदर इसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। पहले होता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स ये माउथ से अपना फूड लेता है, उसके बाद में जो माउथ से फूड लेता है वह इसका जाता है धीरे धीरे, यहाँ पर इसका फूड पाइप होता है। ठीक है, इसोफेगस जिसे बोलते हैं, फूड पाइप से जाता है स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर इसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। वहाँ से डाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है, वह स्मॉलेस्ट फूड के अंदर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है और गिजल्ट हो जाता है। उसके बाद में डाइजेस्टेड फूड जो होता है वह इसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उसको भी सिक्रीट करता है, और इसके लीवर जो होता है उससे बाइल जूस भी, यहाँ पे ये इसकी यहाँ पे एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इसकी, यहाँ पे इस लीवर से यहाँ पर ये जो होता है बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो डाइजेशंस के अंदर फूड को बेसिसिटी देते हैं। उसके बाद स्टोमक में डाइजेस्ट होकर के फूड इसका जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी एक कोलाइडल इंटेस्टाइन इसकी दी हुई है, जिसके अंदर एसिमिलेशंस प्रोसेस स्टार्ट होता है। एसिमिलेशन में इसका जो यूजेस फूड जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट हो गया है, वह एसिमिलेशन के थ्रू इसके ब्लड का जो होता है उसके अंदर चला जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड बन के फ्लो होता है डाइजेस्टेड फूड, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से इसके रेक्टम से होकर के कोका से जो होता है डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरह से उसका पूरा कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो फिनिश होता है। यानी इसका वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, लीवर भी अपना एक अहम रोल निकालती है। ठीक है, उसके अंदर देखिए फैट बॉडीज़ भी यहाँ पे दी हुई है, जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह। इस तरह से इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स मैंने कौन कौन से बताए। यहाँ पे स्टार्ट होगा माउथ, माउथ से इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम में आकर के क्लोका से अनडाइजेस्टेड फूड टेकआउट हो जाएगा, और इंटेस्टाइन के अंदर एसिमिलेशन होता है, और जब अनवांटेड फूड डिस्चार्ज होता है क्लोका से तो वह प्रोसेस कहलाता है इजेशन। इस तरह से 4 प्रोसेस के अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वह कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली स्टडी कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे डिटेल में वर्टिकली यहाँ पे डिटेल के अंदर भी आपको वह स्टडी ईजी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद में हम इसका लेते हैं, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में हम लेते हैं इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि फ्रॉग जो है वह इसके हायर एनिमल्स के अंदर आता है, तो इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स की वजह से इसके अंदर जो होता है यहाँ हार्ट होता है। यहाँ पे देखिए इसके इसी डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स और हार्ट, एक वेल डेवलप इसके अंदर हार्ट होता है, जिसके अंदर यहाँ पे 2 चैम्बर्स का हार्ट होता है, ऑट्रियम और यहाँ पर वेंट्रिकल। ठीक है, फिर यहाँ हार्ट से इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, हार्ट और हार्ट से ब्लड वेसल्स जाती है, जो विंस और आर्टरीज होती है। आर्टरीज यहाँ से हार्ट से प्योर ब्लड लेकर के यहाँ पे ऑर्गन्स के अंदर जाती है, और ऑर्गन से वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड लेकर के फिर से यहाँ पर किसके विंस के थ्रू यहाँ पे आती है। तो इस तरह से इसमें क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है। यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए, ये इसका हार्ट दिख रहा है यहाँ पर, और इसके 2 चैम्बर से ऊपर आता है ऑरिकल, नीचे आता है वेंट्रिकल।
फिर यहाँ से जाती है देखिए ब्लड वेसल्स। जब हम इसका डाइजेक्शन, इसका ये डिसेक्शंस करते हैं तो इसमें हमको इसका वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, क्लियर वेंस और आर्टरीज ही निकालने को दी जाती है जो एकदम क्लियरली दिखती है। ठीक है, जो इम्प्योर ब्लड वाली होती है वो ऊपर की तरफ होती है वेंस, और प्योर ब्लड वाली आर्टरी जो होती है वो रेड कलर की होती है। तो इसमें यहाँ पे क्लोज टाइप का पावरफुल सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है जो ब्लड को फ्लो करता है और हार्ट के थ्रू ब्लड वेसल्स में। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए स्पेशल टाइप्स का होता है, क्योंकि यह एक अकेला ऐसा एनिमल है जो कि कितने टाइप से अपना रेस्पिरेशन करता है। एक तो बक्कल केविटी से करता है, स्किन से करता है, लंग से करता है, इसके सिवाय यह गिल से भी रेस्पिरेशन करता है। इस तरह से इसके अंदर 4 टाइप के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग के अंदर ही पॉसिबल है। 4 टाइप के रेस्पिरेशन कैसे होते हैं देखिए, जब वह फ्रॉग जो होता है अपना एक जो होता है हमेशा वाटर के अंदर देते हैं, और वाटर में इससे जो एडल्ट जो होता है वह डायरेक्ट वो नहीं निकलता है एडल्ट फ्रॉग, उसके बीच में कुछ यहाँ पे मॉर्फोनिज्म्स आती है जिसके अंदर एक से निकलता है प्यूपा, और प्यूपा से वह बनता है छोटा सा स्मॉल टोड, और वह जो यहाँ पे टोड होता है छोटा सा फ्रॉग, तो उसके अंदर गिल्स होते हैं, वहाँ पे लंग्स नहीं होते, उस गिल से रेस्पिरेशन रहता है। फिर धीरे धीरे जब वह एडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर गिल्स जो होते हैं वह डिसअपियर होकर के लंग्स आ जाते हैं, और ये मेटामॉर्फिज्म स्टेजेस से यहाँ पे एडल्ट के अंदर आ जाता है, और एडल्ट के अंदर इसमें लंग्स आने से यह लैंड पर आकर के लंग्स से रेस्पिरेशन लेता है। तो पहले गिल से लिया, फिर इसके अंदर लंग्स आ गए, उसके बाद में बक्कल केविटी। जब फ्रॉग जो होता है वह हाइबरनेशंस करता है तो वह बक्कल केविटी मतलब इसके माउथ के अंदर जो होता है वह सिर्फ अपने माउथ को ओपन रख के, इसके नोस्ट्रिल से ही यह ब्रीथ ले सा ज़रूरी नहीं है, अपने माउथ को ओपन रख के बक्कल केविटी से भी ऑक्सीजन ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्चार्ज कर सकता है। इसके सिवाय जब इसकी एस्टिवेशन और हाइबरनेशन पोजीशन होती है, जब यह अर्थ के अंदर अंडरग्राउंड होता है, तब यह इसकी मॉइस्ट स्किन होती है तो उस स्किन के थ्रू अपना रेस्पिरेशंस करता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं गिल्स, लंग्स, स्किन और बक्कल केविटी, ये सब के सब है। इस तरह से इसके अंदर पावरफुल जो होता है वह रेस्पिरेशन पाया जाता है, और जो लंग्स से लेता है वह पुल्मोनरी रेस्पिरेशंस कहलाता है। ठीक है, और इसमें लंग्स के अंदर जो होता है रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इसके ब्लड का कलर जो होता है वह रेड होता है। और यहाँ पर लंग्स में जो होती है बक्कल केविटी जो होती है वहाँ पे इसमें एस्टिवेशंस और हाइबरनेशन मैंने बताई थी, उसमें गैसेस के एक्सचेंज के टाइम यहाँ पे स्किन से बक्कल केविटी से रेस्पिरेशन रहता है। इस तरह से इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वेल डेवलप क्रोस टाइप का होता है। फिर यहाँ पर फ्रॉग जो है वह लिम्फेटिक सिस्टम भी रखता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि जो इसको एंटीबॉडीज़ देते हैं, डिजीज़ से बचाता है, वह सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही जो वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम्स। लिम्फेटिक सिस्टम्स के अंदर हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स ये सब, और इसके साथ में जो लिम्फ होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं, लिम्फ चैनल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, ये सब मिलकर के बनाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और हार्ट जो होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जब इसका डाइसेक्शंस करते हैं तो हार्ट बहुत अच्छा एक रेड कलर का मस्कुलर के इसमें दिखाई देता है। इसके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्ट्रिया और 1 वेंट्रिकल, और इसकी मेम्ब्रेन जो होती है वह पेरिकेडियम कहलाती है। यह ट्रायंगुलर शेप का होता है, और यह पूरा हार्ट जो है आप इनको डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। और इसका ब्लड जो होता है रेड कलर का होता है, जिसके अंदर प्लाज्मा होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट सेल्स होती है। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पे आता है इसका जो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इसके अंदर किडनी होती है। ठीक है, जो किडनी इसकी होती है वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। उसका नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होता है, क्योंकि यह यूरियोटेलिक एनिमल्स के अंदर आता है, तो इसका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है वह होता है यूरिया, इसीलिए से यूरियोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। ओके, यूरिया के थ्रू में यह एक्सक्रीट जो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, उसको यह एक्सक्रीट करता है, इसीलिए से यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। और यह इसका जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वह किडनी होता है। इसके एनाटोमी में 2 बीन लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वह किडनी का शेप है, वो किडनी दी हुई है। किडनी जो होती है वो यूरेटर जो होता है क्लोका में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है। फिर वो जो किडनी यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो होता है वहाँ पे फिल हो जाता है, फिर क्लोका से जो होता है रिलक्शन से डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर एक पावरफुल स्टेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। जो देखिए यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे देखिए ये इसकी 2 बीन शेप की किडनी जो है यूरेटर से जुड़ी हुई है। यहाँ पे यूरिन बनता है और वो यूरिन जो होता है यूरेटर के अंदर जाता है। फिर यूरेटर्स के बाद में यहाँ पे ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर है।
इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो होता है यह कलेक्ट हो जाता है, फिर क्लोका से जो होता है यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस और रिलेक्शन प्रोसेस से यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है यूरिन। इस तरह से इसके अंदर जो है वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पाया जाता है। उसके बाद में आता है यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद में इसे हम यूरेटेलिक एनिमल बोलते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर जो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करती है और विदाउट गट वाली होती है। इसके अंदर देखिए कौन कौन से हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के अंदर होती है, थायराइड जो थ्रोट के अंदर होती है, पैराथायराइड जो थ्रोट से थोड़ी नीचे होती है, थाइमस जो होती है वह होती है ब्रेन के अंदर, पीनियल जो होती है वह भी ब्रेन के आसपास, और पैनक्रिएटिक आइसलैंड होती है, एड्रिनल जो होती है वह किडनी के आसपास होती है, और गोनाड्स जो होती है वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसके पास में होती है। तो इस तरह की सारी इसकी एड्रिनल ग्लैंड्स भी पाई जाती है जो स्पेशल टाइप्स के हार्मोन्स को सीक्रेट करके स्पेशल टाइप्स के फंक्शंस जो होते हैं उसके अंदर कंट्रोल करती है। तो इस तरह से इसके अंदर एक पावरफुल एंडोक्राइन सिस्टम भी पाया जाता है। फिर है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर देखिए यहाँ पर ये नर्वस सिस्टम्स के अंदर इसमें आता है ब्रेन स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड्स के अंदर जो नर्व्स होती है, यहाँ पे नर्व्स जो होती है वो इसके कोई भी बाहर की सेंसिटिवनेस जो होती है उसको एक्सेप्ट करती है, और उसको मोटर नर्व और जो इसकी सेंसिटिव नर्व होती है उसके थ्रू इसको मैसेज मिलते हैं ब्रेन को, और ब्रेन जो होता है वह फंक्शन करता है। उसके अंदर क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती है। ये नर्वस सिस्टम्स के अंदर इसका सिंपैथिक और पैरासिम्पेटिक दोनों टाइप्स के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। उसका ब्रेन जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। आगे वाला जो होता है 4 ब्रेन होता है जिसके अंदर ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं और वह हेमिस्फीयर शेप का होता है। मिड ब्रेन जो होता है उसके अंदर ऑप्टिक लोब्स होते हैं जहाँ पे अपने जो आइस वगैरह जो इसके सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। हिंड ब्रेन जो होता है वह सेरिबेलम होता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा होता है जो इसके अंदर स्विमिंग में वॉकिंग के अंदर बैलेंस बना के रखता है। इस तरह से इसके अंदर एक पावरफुल नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है जो ब्रेन और नर्व से जुड़ा होता है। अब इसके बाद में इसके सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं टच करने के लिए इसकी मॉइस्ट स्किन होती है, टेस्ट के लिए इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होती है, टंग के अंदर इसकी बहुत लार्ज और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड टंग होती है, स्मेल के लिए इसके अंदर एक नेसल एपिथेलियम होती है, विज़न के लिए इसके अंदर कंपाउंड आइज होती है, हियरिंग के अंदर इसके एक्सटर्नल ईयर नहीं होते लेकिन इंटरनल ईयर होते हैं, टिम्पेनम। इस तरह से इसके सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, और इसकी आइज और एक्सटर्नल ऑर्गन जो होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर एक पावरफुल पूरा कंप्लीट नर्वस सिस्टम भी होता है और 5 सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स को इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और मैंने मॉर्फोलॉजी के अंदर भी आपको बता दिया था कि केवल एक्सटर्नल देखने से ही मेल और फीमेल फ्रॉग के अंदर हमें पता चल जाता है ये मेल और फीमेल है, लेकिन यहाँ पे एनाटॉमिकल तो होते ही है कि फीमेल जो होता है यहाँ पे ये देखिए ये मेल है। ठीक है, तो मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यहाँ पे एनाटॉमिकल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होते हैं 2 टेस्टिस। ओके, टेस्टिस जो होते हैं वह इसका जेनाइटल एपेटस होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 2 टेस्टिस, और टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, और स्पर्म जो होता है इसका मेल गैमीट होता है। टेस्टिस यहाँ पे जाते हैं इसकी यहाँ पे वास्ट डिफरेंस के अंदर, और वास्ट डिफरेंस जो होती है वह जाती है इसके अंदर यहाँ पे ग्लैंड्स होती है, और उस ग्लैंड्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और ये उस स्पर्म को यहाँ पे इसमें अपने पेनिस से डिस्चार्ज करता है फीमेल फ्रॉग के ओवरी के अंदर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे मेल हो गया था। अब देखिए यहाँ पे फीमेल। ठीक है, ये फीमेल इसका रिप्रोडक्टिव यहाँ पे ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? ओवरी। यहाँ पे देखिए ये 2 बोथ साइड लेफ्ट और राइट साइड 2 ओवरी दी हुई है। ओवरी जो होती है इसके अंदर जो होता है फीमेल गैमेट ओवा बनता है, और ओवरी जो होती है ओविडक्स से जुड़ी होती है। अब जब मेल फ्रॉग जो होता है फीमेल से मैटिंग करता है, तो मैटिंग के टाइम उसके स्पर्म जो होते हैं वो यहाँ से इसके क्लोका के थ्रू डिस्चार्ज करता है, और क्लोका से होते हुए ओविडक्ट में आते हैं, और उसको यहाँ पे ओवा मिलता है तो वो फर्टाइल हो जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद में इसमें जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद में इसमें जो एग होता है वह एग बनता है, और एक फीमेल फ्रॉग
1000 तक एग होती है वह देती है और वाटर के अंदर ही देती है। फिर एग के अंदर मेटामॉर्फिज्म होता है, तो उससे लार्वा प्यूपा इस तरह से बनेगा, टोड बनेगा, और फिर धीरे धीरे वह एडल्ट के अंदर जो होता है मॉडिफाइड होगा। तो इसके अंदर मेटामॉर्फिज्म स्टेजेस पाई जाती है। तो इस तरह से फ्रॉग जो होता है अपना पूरा लाइफ साइकिल जो होता है वह फिनिश करता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है आज फ्रॉग। जो टेडपोल होता है वह जो होता है वह उसके अंदर गिल्स होते हैं, और टेडपोल से ही वहाँ पर एडल्ट बनता है। जो एडल्ट फ्रॉग होता है उसके अंदर गिल्स डिसअपियर होकर के लंग्स बनते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से फ्रॉग जो होता है वो बेनिफिट भी कहा जाता है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि हमारा इकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर जो है इसमें एक इकोलॉजिकल चेन बनती है। फ्रॉग जो होते हैं इंसेक्ट्स को खाते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट जो होते हैं अर्थ के ऊपर आ जाएंगे। तो ये एटमॉस्फेयर को यहाँ पे एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है और क्रॉप को भी उन इंसेक्ट से बचाता है। इसके सिवाय फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। तो वो स्नेक जो होते हैं अगर बहुत सारे फ्रॉग बढ़ गए यहाँ पे तो उसको मेंटेन करने के बैलेंस करने के लिए स्नेक को खाते हैं। तो इस तरह से इकोलॉजिकल वेब भी बनाता है, इकोलॉजिकल फूड चेन भी बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में भी अपना यहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस देता है, और इस तरह से यह मैनकाइंड के लिए बेनिफिट होता है क्योंकि यह क्रॉप को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और बहुत सारी जो कंट्रीज़ है उसके अंदर फ्रॉग के मस्कुलर एग जो होते हैं मैन के द्वारा ऐसे फूड के रूप में भी खाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आज आपका फ्रॉग भी कंप्लीट हो गया है। इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका 7 लेसन जो है कंप्लीट